origin of magnetism in a material. Correct? It's all about origin of magnetism in a material. और हमने एक देखा, if we take an electron which is revolving around the nucleus, this electron produces a current, of course, and it produces, since there is a movement of charge, there is a flow of charge, it produces a current which is in opposite direction to the flow of electron. According to the conventional direction of current, the direction of current which is introduced is in opposite direction to the flow of electron. And what we found that because of this, you know, whenever there is a production of current, according to a state experiment, there is a production of magnetism. Okay, there is a production of magnetic field. So that is what we proved here. I'm going with a short revision. I is equals to E by T. If I introduce negative sign, it simply explains you that direction of current and direction of electrons are in opposite direction. Okay. So if you introduce here I is equals to E by T, we introduce the T part and we got T as, हमने T निकाला था, it was 2 pi R by V. So when we introduce, it is EV by 2 pi R, correct? And you know, if there is a current that introduces a magnetism, what's E? E क्या है? What is E? E क्या होता है बताओ जरा? It's a total charge on electron. It's a total charge on electron. एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर टोटल चार्ज जो भी होता है कितना होता है बताओ जरा? 1.6 into 10 raised to minus 19. 0.6 into 10 raised to 9. Minus 19. That is what is the part is D. So M is equals to, you know that if there is a current that introduces a magnetic moment which is given by M is equals to I into A, where I is this EV by 2 pi R. If I introduce negative sign, of course, and then multiplied by A is pi R square. आप पूरा सॉल्व करते हो तो आपको जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट मिलता है, यू गेट समथिंग एज हाफ माइनस ऑफ हाफ EVR. ये माइनस आप स्टार्टिंग से इंट्रोड्यूस कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, माइनस सिर्फ आपको डायरेक्शन बताता है. ओके, नाउ इफ यू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय ME, दैट इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. अब मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर रहे हो, वो ये मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय mass of electron. What you will simply get? Magnetic dipole moment due to orbital. This is an orbital, ना? We are talking about the orbital one. We have not talked about the spin till now. आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में मूव भी करता है और स्पिन भी करता है, दोनों काम करता है. So we are talking about M orbital. That is equals to, if you multiply and divide, you simply get half ME into E VR divided by ME. Now this L is equals to MEVR. This E small e, it simply explains that we are talking about mass of electron here, nothing else. Okay, so M orbital is equals to this MEVR. This simply becomes L. So you get the equation as half, ये E बचा हुआ है, नीचे का ME बचा हुआ है, and this MEVR becomes L, which, and this negative sign, if you write it into vector form, of course you know that magnetic dipole moment is a vector quantity. So if you represent it in a vector form, it simply shows that magnetic dipole moment due to orbital. Of course here we are talking about our orbital. We have taken an example for orbital to understand the origin of magnetism. जिस तरीके से ऑर्बिटल में होता है, उसी तरीके से स्पिन भी मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है. इलेक्ट्रॉन के दोनों मूवमेंट्स मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं. दैट इज इलेक्ट्रॉन का ये जो मूवमेंट है रिवॉल्यूशन, ये भी मैग्नेटिज्म का ओरिजिन है, और जो वो खुद स्पिन करता है वो भी मैग्नेटिज्म का ओरिजिन है. अब आगे जाके जब हायर स्टैंडर्ड्स में जाओगे आपको पता चलेगा कि इस ऑर्बिटल से ज्यादा कंट्रीब्यूशन इसके स्पिन का होता है. यू विल फाइंड आउट कि ऑर्बिटल से ज्यादा कंट्रीब्यूशन नेट
नेट मैग्नेटिक फील्ड में ऑर्बिटल से ज्यादा कंट्रीब्यूशन उसके स्पिन का होता है। ये अब आगे जाके समझोगे। अभी आपको काफी बेसिक से लेके जाया जा रहा है कि एग्जैक्टली ऐसा क्यों हो रहा है कि इट इज प्रोड्यूसिंग अ करंट और इट इज प्रोड्यूसिंग अ मैग्नेटिक फील्ड। सो यू विल फाइंड आउट कि ऑर्बिटल से ज्यादा कुछ आपको ये स्पिन हेल्प करता है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए। सो लेट्स गो अहेड। m orbital is equals to E by 2me multiplied by L bar, where L bar is the angular momentum. And this negative sign is explaining that your magnetic dipole moment and your angular momentum, they are in opposite direction. You can find it with the help of a right hand thumb rule. Electron ka direction is this. This is the electron ka direction. So according to right hand thumb rule, electron angular momentum move कौन कर रहा है? Electron move कर रहा है. So angular momentum will be due to the electron ka movement. So angular momentum according to the right hand thumb rule, if it is coming down, according to the right hand thumb rule, if it is coming down, that is in the clockwise direction. अगर मैं अपने हाथ को clockwise direction में move करूँ, तो मेरा thumb मुझे angular momentum का direction दिखाता है. So downward direction is the angular momentum. Current जो है वो magnetic dipole moment को introduce कर रहा है. So जिस direction में current ज्यादा है, अगर मैं उस direction में अपना हाथ move करूँ, तो मुझे magnetic moment का magnetic dipole moment का direction पता चलेगा. And we came to know that this angular momentum and magnetic dipole moment का जो directions है, they are in opposite direction. This is what your even equation is representing. That always dipole moment introduced in the electron का orbit is in opposite direction to the angular momentum due to the moment of this electron. Okay. Now after that मैं यहाँ पर stop हुई थी. मैंने कहा था this E by 2me. This E by 2me is called as gyromagnetic ratio. इसको gyromagnetic ratio बोलते हैं. Unit for this is, of course, this is coulomb and this is kg. So it is coulomb per kg. Gyromagnetic ratio को define किस तरीके से किया जाता है? It is defined as net orbital moment per unit angular momentum. एक angular momentum से कितना magnetic dipole moment generate हो रहा है, that gives you a gyromagnetic ratio. Of course, it gives you the gyromagnetic ratio. And this was actually studied by Bohr. You know Niels Bohr, जिन्होंने हाइड्रोजन एटम के बारे में काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है. एंड एक्चुअली उन्होंने एटम के बारे में ही उन्होंने 3 पोस्टुलेट्स निकाले थे. यू नो अबाउट नील बोर, करेक्ट? ये एटम के बारे में उन्होंने 3 पोस्टुलेट निकाले थे. जब ये एक्सप्लेनेशन, लेट्स गो अहेड, तब और अच्छे से समझेगा. So this is known as gyromagnetic ratio, E by 2me. This is simply, it can be defined as, it is net magnetic moment per unit angular displacement. Per unit angular momentum. Per unit angular momentum में कितना net magnetic dipole moment generate हुआ है, that gives you a gyromagnetic ratio. Now, let's move further. We are clear with what is gyromagnetic ratio. Now let's go ahead with the Bohr's postulate. आपको याद है Bohr's के क्या-क्या postulate थे? कोई बता सकता है? Bohr's के postulate बता सकता है कोई मुझे? Bohr's ने 3 postulate को बताए थे. बता सकते हो कौन से postulate थे? आपको केमिस्ट्री में ये पार्ट सारी चीजें हो चुकी है 11th स्टैंडर्ड में. So I expect you to give answer. और ये एटम के बहुत बेसिक पोस्टुलेट्स, अगर ये आपको नहीं आता तो आपको कुछ नहीं आता. वो वाला क्या एनर्जी में रोटेट करता है. हाँ वैसा ही कुछ है. हाँ वही है. नील बोर्स का सबसे बड़ा डिस्कवरी वही है. At a constant temperature. कांस्टेंट टेम्परेचर वगैरह कंसीडर करने की जरूरत नहीं है. एटम के लेवल पे बात कर रहे हो आप. एटॉमिक लेवल पे यू डोंट नीड टू डिस्कस ऑल दिस थिंग्स. हाँ मिस, वो मतलब अपने पर्टिकुलर एनर्जी लेवल के ऑर्बिट पे घूमता रहेगा. और अगर वो सीक्वेंस होगा ना उसका बताने का, कुछ सीक्वेंस में बताया होगा उसने 3 पोस्टुलेट्स, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 पोस्टुलेट निकाले थे. व्हाट वाज द फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ नील बोर्स? मैम इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन न्यूक्लियस में सर्कुलर ऑर्बिट ट्रैवल करता है. एग्जैक्टली. सबसे पहला पोस्टुलेट ये था नील बोर का कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के आजू बाजू एक सर्कुलर ऑर्बिट में रोटेट करता है. दिस वाज द फर्स्ट पोस्टुलेट. सेकंड पोस्टुलेट,
वो मैम पर्टिकुलर एनर्जी ऑर्बिट लेवल का एनर्जी हर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट का एनर्जी का से डिस्टेंस से सेम फिक्स रहता होता है। है। मुझे ये बता सकते हो कि वो कौन से शेल्स में उसने एक इक्वेशन दिया था फॉर रिप्रेजेंटिंग द सेकंड व्हाट वी कैन से सेकंड पोस्टुलेट। उसे एक इक्वेशन दिया था कि आपके इलेक्ट्रॉन्स इसी शेल में प्रेजेंट होंगे, अगर होंगे तो भी। एक इक्वेशन उसने रिप्रेजेंट किया था इन द टर्म्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अगर आपको याद हो, इन द टर्म्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम उसने एक इक्वेशन रिप्रेजेंट किया था जिससे उसने कहा था कि ओनली इसके ही इंटीग्रल मल्टीपल्स में आपके जो इलेक्ट्रॉन है, इन्हीं इंटीग्रल मल्टीपल्स में आपके इलेक्ट्रॉन्स इन्हीं मैम शेल्स में 2p प्रेजेंट होंगे। ओ मैम NH/2 था। एग्जैक्टली उसने कहा था कि L इज इक्वल्स टू NH/2 में ही ये जो आपका n का इंटीग्रल है, इन्हीं ऑर्बिट्स में जिनका एंगुलर मोमेंटम इसका मल्टीपल होगा, उन्हीं ऑर्बिट्स में आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑर्बिट करेगा अराउंड द न्यूक्लियस। एंड ऑफ कोर्स द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑर्बिट्स विल बी कांस्टेंट, दैट इज ऑलवेज ट्रू। देन द थर्ड वन वाज, उसने बोला था कि कभी भी एक इलेक्ट्रॉन अगर इसमें ऑर्बिट कर रहा है, कंटिन्यूअसली ऑर्बिट कर रहा है, तो ऐसा बोलते हैं कि इफ इट इज मूविंग इन अ सर्कल इट शुड लॉस सम एनर्जी। बट उसने ये बताया था कि when something is moving in a circle, ये अगर ये इलेक्ट्रॉन है, अगर ये अपने ही ऑर्बिट में, अपने ही घर में घूम रहा है, तो इट विल नॉट रिलीज एनर्जी। जब या तो वो जंप करेगा या तो वो अंदर आएगा, तभी वो एनर्जी को रिलीज करेगा। दिस इज व्हाट इज द थ्री पोस्टुलेट्स दैट बोर हैव पोस्टुलेटेड। और ये सारे एक्सपेरिमेंट्स उसने हाइड्रोजन एटम को लेके किए थे, दैट इज द लाइटेस्ट एलिमेंट। उसने हाइड्रोजन एलिमेंट को लेके ये सारे पोस्टुलेट्स को डिफाइन किया था। Okay, so let's go ahead. Let's try to find something. Now we know according to Bohr's second postulate. Bohr's second postulate. Your L is given by NH/2 जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करने वाले हैं। Okay, हमने अभी देखा m orbital is equals to, I'm just writing the magnitude. I'm not going for directions again and again. Just keep it in mind that direction exists, of course. So m orbital is equals to E NH. If I represent it, this E/2me, और L की जगह पे हम डाल सकते हैं NH/2. What we have done? M orbital is what? E/2me. This L1, L. This L is the angular momentum. So I'm just substituting this NH/2 instead of L. So I get the m orbital as m orbital is equals to E by this 2 to the 4 E/4 pi me NH. Okay, where this n is the principal quantum number. That is which orbit you are talking about. You're talking about which orbit? First orbit, second orbit, third orbit, and fourth orbit. H is the Planck's constant. M is the mass of the electron. E is the total charge on an electron. And 4 pi is a constant value, of course. So if I go for first orbit, m orbital, for n is equal to 1. If I substitute n is equal to 1, I get EH/4 pi me. I know the value of one electron ka charge. I know H value, that is the Planck's constant. I know mass of electron. So when you will substitute everything, you'll find that m orbital for the first orbit is a fixed value, which is the smallest magnetic moment inside the atom, and it is given by, अगर आप सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, you will find that m orbital for the first orbit in an hydrogen atom. Hydrogen atom consists of single electron. So I'm talking, since Bohr have discussed everything in the terms of hydrogen atom. So the smallest value that an atom can have as a magnetic dipole moment, okay, is 9.27 into 10⁻⁻24 ampere per meter square. This much amount of magnetic dipole moment a single atom can have. This is the smallest magnetic dipole moment an atom can have. इतना होगा एक ऑर्बिटल मोमेंट. दिस इज द मिनिमम वन. और आपका जो मैग्नेटिक मोमेंट है, इसीलिए आपका जो मैग्नेटिक मोमेंट है, जब एटॉमिक लेवल पे बात किया जाता है, सो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, उसको बोर मैग्नेटॉन में मेजर किया जाता है.
they take this particular whole unit as a whole value as a unit. So in atomic level, at atomic level, that is magnetic moment of atom is stated in the terms of Bohr magneton. एक बोर मैग्नेटॉन है, दो बोर मैग्नेटॉन है, तीन बोर मैग्नेटॉन है. This total term is a बोर मैग्नेटॉन. इसको बोर मैग्नेटॉन बोला जाता है. This whole part is a बोर मैग्नेटॉन. This is the minimum amount that your orbital will have a magnetic moment. So जब आप atomic level पे जाके बात करते हो, आप instead of measuring your m orbital in ampere per meter square, you start measuring in Bohr magneton. You say it have 1 times of Bohr magneton, 2 times of Bohr magneton, 3 times of Bohr magneton. So Bohr magneton becomes one more unit. Hope you are clear with this much. समझा सबको क्या है? Should I repeat it again or you are clear with the things? मैं दिखा रही हूँ, अगर कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो. What we have done. मतलब आपका एक ऑर्बिट विद अ सिंगल इलेक्ट्रॉन, आपका लाइटेस्ट जो एलिमेंट है दैट इज हाइड्रोजन, उसको कंसिडर करने के बाद हमको ये बात पता चल गई कि ड्यू टू द ऑर्बिटल मूवमेंट एटलीस्ट इतना मैग्नेटिक मूवमेंट तो इंट्रोड्यूस होना ही है. दिस इज अ मिनिमम अमाउंट. अभी तक स्पिन को कंसिडर किया ही नहीं है, बट नेट मैग्नेटिक मूवमेंट इज ड्यू टू स्पिन प्लस ऑर्बिटल मोमेंटम. ऑफ कोर्स दोनों की वजह से, क्योंकि स्पिन का जो व्हाट वी कैन से, स्पिन का जो जनरेशन हुआ, स्पिन का जो डिस्कवरी हुआ, वो काफी टाइम बाद हुआ कि प्लस हाफ माइनस हाफ होता है. जब क्वांटम चीज आई तो तब तक के लिए सबसे मिनिमम अमाउंट जो कंसिडर किया गया था इट वाज दिस. जब आप आगे आगे हायर लेवल पे जाओगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारी चीजें नई डिस्कवर हुई है. सो ये सारी चीजें अभी सिर्फ क्लासिकली देखी गई है. जब आप क्वांटम लेवल पे जाओगे तो इससे भी कुछ अच्छा समझ में आएगा या इससे भी कुछ नया समझ में आएगा. तब ये सारी चीजों को बहुत ही बेसिक लेवल पे यूज किया जाता है. बट स्टिल टिल नाउ बोर मैग्नेटॉन को वैल्यू दी जाती है और सारी चीजों को बोर मैग्नेटॉन के टर्म्स में कन्वर्ट करके यूज किया जाता है, बिकॉज इट वॉज अ स्पेशल डिस्कवरी. जिस चीज को हम देख नहीं सकते उस चीज के बारे में दैट पर्सन हैव डिस्कवर्ड अ लॉट. हम सिंगल एटम नहीं देख सकते, उसने इलेक्ट्रॉन को, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन को लेकर उसके एंगुलर मोमेंटम को निकाल कर सारी चीजों को सब्स्टिट्यूट किया. सो इट्स अ बिग डिस्कवरी. सो इट कैन नॉट बी निग्लेक्टेड वेदर आपका क्वांटम मैकेनिक्स किसी भी लेवल तक चला जाए. ओके, क्वांटम मैकेनिक्स इज अ physics which deals with electrons and the fundamental elements inside the atom and how they behave. This is what is the part. So Bohr magneton is the minimum value that an atom with a single electron orbiting around the nucleus can have. This is the minimum value of magnetic dipole moment inside an atom. So at atomic level, your what we can say, your magnetic dipole moment is measured in Bohr magneton. Clear? हमने दो नए वर्ड्स पढ़े जो आपको याद रखने हैं. सबसे पहला हमने पढ़ा गायरोमैग्नेटिक रेशियो. ये सारी चीजें इसलिए फोकस कर रही हूँ क्योंकि ये आपके 1 मार्क्स में आती है. They will write you to explain, define gyromagnetic ratio. So it is simply, gyromagnetic ratio was given by E by 2me. And it can be defined as, अगर आपको याद हो, it is m orbital per unit angular momentum. Okay, this can be defined. And second हमने पढ़ा बोर मैग्नेटॉन के बारे में, which is given by a fixed value for a first orbital, that is first orbit, that is 9.27 into 10 raised to minus 24. Minus 24, समझ सकते हो कितना छोटा वैल्यू है ये, ampere per meter square. Okay, so this is a unit which is used for magnetic dipole moment at the atomic level. Ampere per meter square के बदले बोर मैग्नेटॉन के टर्म से आपको कभी कभी बोल देगा it have 2 बोर मैग्नेटॉन, तो आपको सीधा दिमाग में आ जाना चाहिए 2 बोर मैग्नेटॉन means 2 into 9.27 into 10 raised to minus 24. तो आपको ये चीज दिमाग में आनी चाहिए कि your dipole moment, magnetic dipole moment in the terms of, in the field of atomic level, it is also given by the unit of a Bohr magneton. ये चीज आपको सम सॉल्व करते समय दिमाग में क्लिक होना जरूरी है. Okay, let's go ahead. If you don't have any doubt, should I go ahead? So let's try to have
to understand something more. Now, there are some points to remember which you will study in deep in your chemistry. आप chemistry में पढ़ोगे बहुत ज़्यादा deep में उसके बारे में. You already know that your orbits consist of SPDF, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. कुछ सुना है ऐसा? This is an electronic configuration. Okay, this is the way in which you write the electronic configuration of an element. For example, if I am writing helium, let's take an example of helium. What is the atomic number for helium? Answer. What is the atomic number for helium, everyone? 2. So you simply go for, of course, helium have a single orbit. Its first shell is only the last shell, correct? So if you write the electronic configuration, you write 1s2. ऐसा कुछ लिखते हो. अब अगर तुमको याद हो, according to your Pauli's exclusion principle ये बोलता है कि किसी के भी चारों के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते. किसी ना किसी एक को अलग होना ही है. You have 4 quantum numbers. What are those 4 quantum numbers? Principal quantum number n, azimuthal quantum number l, Magnetic quantum number. and spin quantum number. Spin quantum number. अगर ये तीनों सेम भी होते हैं किसी तरीके से तो ये अलग होने वाला है. तीन अलग होते ये प्लस हाफ या माइनस हाफ में से प्रेजेंट होगा. सो ये जो ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स है, दे आर पैड. अगर आप इसको पेयरिंग करके लिखो, ऐसा कुछ पेयरिंग की जाती है. आपका S का 2 का कैपेसिटी होता है, P का कितने का कैपेसिटी होता है? P का 10 का नहीं होता, P का 6 का कैपेसिटी होता है, D का 10 का कैपेसिटी होता है. मैं फिजिक्स की टीचर हूँ, मुझे केमिस्ट्री आपसे ज्यादा आता है ऐसा लग रहा है. आपको आना चाहिए केमिस्ट्री ज्यादा स्ट्रॉन्ग वे में. आप अभी पढ़ रहे हो. ओके, कोई बात नहीं. D का कैपेसिटी, D के पास 5 ये होते हैं और 10 की कैपेसिटी होती है उसकी ओवरऑल. सो अगर मैं यहाँ पर इस हीलियम को डालूं, इसके पेयर्स बनाऊं, तो इट विल बी सिंपली लाइक दिस. ऐसा कुछ रिप्रेजेंट करते हो आप. इट सिंपली मीन्स कि एक का स्पिन ऊपर है और एक का स्पिन नीचे है. ये स्पिन ही इसके पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करवा रहा है, जो कि पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल समझाता है कि कोई ना कोई एक चीज तो पक्का, अगर 3 चीज सेम भी हो रही है तो स्पिन ऐसा होगा कि वही उनको सेपरेट कर देगा. ओके, सो ये सारी चीजें क्यों लाया मैंने यहाँ पर, उस चीज को समझने की कोशिश करो. मैंने आपको जब समझाया, मैंने आपको बोला कि नेट मैग्नेटिक मूवमेंट जो होता है वो स्पिन की वजह से और ऑर्बिटल के मूवमेंट की वजह से, ये दोनों वजह से नेट मैग्नेटिक मूवमेंट होता है. हमने सिर्फ ऑर्बिटल का प्रूफ किया है. तो जिस तरीके से ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट को जनरेट कर रहा है, वैसे स्पिन भी गोल गोल घूम रहा है. सो उस इलेक्ट्रॉन का स्पिन भी मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट को जनरेट करता है. और सबसे बेस्ट पार्ट ये पता चली कि स्पिन का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा होता है. मतलब अगर सिर्फ किसी के पास ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट है तो आप समझ सकते हो कि ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट कितना है, 10⁻⁻⁴ के पावर में है. इट इज टू स्मॉल. तो ये जो ऑब्जेक्ट मैग्नेटाइजेशन दिखाते हैं ना, कि कोई ऑब्जेक्ट मैग्नेटिक बिहेवियर दिखा रहा है, कोई ऑब्जेक्ट मैग्नेटिक बिहेवियर नहीं दिखा रहा है, वो सब उसके स्पिन पे डिपेंड करता है. बहुत बड़ी बात बता रही हूँ, जरा ध्यान से समझना. ऑर्बिटल की वजह से तो मैग्नेटिक मूवमेंट एग्जिस्ट करता ही है, बट इट इज वेरी स्मॉल, 10⁻⁻24. अब 10⁻⁻24 को बैठे बैठे डिटेक्ट भी नहीं कर सकते, इट्स टू स्मॉल. सो जो मेन एक ऑब्जेक्ट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखाएगा या नहीं दिखाएगा, वो उसके स्पिन के वजह से जो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेट होगा उस पर डिपेंड करता है. ओके, सो मेन जो नेट मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट देखने के लिए मिलता है, जो मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी देखने के लिए मिलती है, वो पूरी तरीके से उसके स्पिन पे डिपेंड करती है. अब ये जो हीलियम है, आप देख सकते हो कि हीलियम में एक का पेयरिंग, एक जो है स्पिन ऊपर है, ऊपर की तरफ है, यू कैन कंसिडर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज. और दूसरा स्पिन जो है, अगर मैं इसको क्लॉकवाइज लेती हूँ, तो अगर मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज लेती हूँ तो सेकंड वन इज क्लॉकवाइज, ऐसा और ऐसा कंसिडर कर सकते हो. तो इसके अंदर जो नेट हो जाएगा, एक प्लस डायरेक्शन में है, एक माइनस डायरेक्शन में, इसका नेट 0 हो जाएगा. सो हीलियम डज नॉट शो नेट मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट. इसके अंदर आपको मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, क्योंकि इसके स्पिनिंग की वजह से
आपका जो नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 0 आ जाता है. सो जहां पर भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं वो कभी भी वो ऑर्बिटल शेल्स बहुत ज्यादा या ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 0 नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को कंट्रीब्यूट करते हैं. Let's say one more example. Let's take one more example. Let's take which one will take? Let's take carbon. Carbon को लेते हैं. बताओ जरा कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है? 6. What is the atomic number? 6. ठीक है, 6 है. Let's try to write out the electronic configuration. Configuration बताओ इस PDF के टर्म में. 1s2, 1s2, 2s2, 2s2, 2p, 2p, 2. 2. अगर आप इसका ये बनाओ बॉक्सेस कैसे बनाओगे? P के ऑफ कोर्स P का कैपेसिटी कितने का होता है? 6 का. उसके पास 3 ही ये होता है. आप यहाँ पे ये पहला दोनों फिल हो जाएगा, ये दूसरा भी दोनों फिल हो जाएगा, ये तीसरे वाले में सिर्फ ऐसा और ऐसा आएगा. मतलब यहाँ पर इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है. इट हैव अ अनपेड इलेक्ट्रॉन. आपको पता है ये आगे आगे बढ़ते जाता है फिर रिटर्न बैक आता है ना? होप यू नो अबाउट दिस. और अगर नहीं पता तो आपको आगे जाके ये सारी चीजें बहुत यूज होने वाली है. तो अब इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है, मीन्स यहाँ पर पेयरिंग इलेक्ट्रॉन की नहीं हो रही है. सो दिस विल हैव नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट. इसके पास नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा. सो ये जो नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, ये जो मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना मैग्नेटाइज्ड हो सकता है या उसके पास कितनी मैग्नेटिज्म रखने की कैरेक्टरिस्टिक है, वो पूरी तरीके से उसके स्पिन पे डिपेंड करती है. ऑफ कोर्स ऑर्बिटल कंट्रीब्यूट्स, ऐसा नहीं कि वो कंट्रीब्यूट नहीं करता. दोनों का अगर आप टोटल निकालने जाओगे तो इट इज मैग्नेटिक मूवमेंट, डाइपोल मूवमेंट ड्यू टू ऑर्बिटल प्लस मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ड्यू टू स्पिन. बट स्पिन का कंट्रीब्यूशन बहुत ही स्ट्रांग होता है. ये जब आप हायर लेवल में जाओगे तब आपको और अच्छे से समझेगा कि स्पिन और कितना अच्छे से कंट्रीब्यूट करता है. और ये एग्जैक्टली ये स्पिन है क्या, समझ में आ रहा है व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? सो जो मैग्नेटिज्म है ये पूरी तरीके से इसके स्पिनिंग पे डिपेंड करता है. इट डिपेंड्स अपॉन द स्पिन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, अगर आपके पास ऐसा कोई एलिमेंट, फॉर एग्जांपल इफ यू टेक आर्गन, लेट्स ट्राई टू टेक आर्गन. आर्गन का एटॉमिक नंबर इज हाउ मच? 18. अगर आप इसका कॉन्फ़िगरेशन करो, कॉन्फ़िगरेशन कैसे आएगा जरा बताओ? इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा आएगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. बराबर है ना? हो गया 10 + 8 18. अब देखो इसके सारे शेल्ड फील्ड है, सबकी पेयरिंग हो चुकी है. मतलब अब ये इजीली मैग्नेटाइज्ड नहीं होगा. इट विल बी नॉट मैग्नेटाइज्ड क्योंकि इसके अंदर इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं डाइपोल मोमेंट क्रिएट करने के लिए. अगर एक ने क्लॉकवाइज में क्रिएट किया, एक ने ऊपर क्रिएट किया, दूसरे ने नीचे क्रिएट कर दिया, द नेट डाइपोल मोमेंट बिकम 0. होप यू क्लियर व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? तो नॉर्मली ये जो नेट डाइपोल मोमेंट आपको मिलता है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही मिलता है. इट इज बिकॉज ऑफ द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन भी आता है जेडेबल में, आपको एक एलिमेंट दे देंगे और वो बोलेंगे कि वेदर इट विल शो मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक और नॉट, तो आपको सिंपली उसका पेयरिंग निकालना है. अब उसका पेयरिंग निकालते हो, अगर ऐसा मिलता है कि उसके पास बिल्कुल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो आप सीधा बोल दोगे कि भाई ये नहीं दिखा सकता मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, या इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बहुत वीक होगी, ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 0. आप ऐसा बोल दोगे. अगर वो दिखा रहा है उस पर भी डिपेंड करता है. आगे भी और भी पार्ट्स डिवाइड होते हैं. दिखा रहा है तो कितना दिखा सकता है, कम दिखाएगा कि ज्यादा दिखाएगा, वो सारी चीजें हम आगे जाके पढ़ेंगे कि कम दिखा रहा है तो क्यों कम दिखा रहा है, ज्यादा दिखा रहा है तो क्यों ज्यादा दिखा रहा है. वो सारी क्वांटिटीज भी हम आगे जाके पढ़ेंगे कि ऑन व्हाट फैक्टर्स इट डिपेंड्स कि वो कम दिखा रहा है या ज्यादा दिखा रहा है तो क्यों ऐसा कर रहा है. व्हाट दोस मटेरियल्स आर कॉल्ड, जिसके अंदर कम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देखने के लिए मिलती है या किसी के अंदर ज्यादा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देखने के लिए मिलती है. ये जो प्रॉपर्टीज है वो किन चीजों पे डिपेंड करती है वो हम आगे जाके पढ़ेंगे. So hope you are clear. So for net magnetic dipole moment आपका unpaired electron होना बहुत जरूरी है. If it is not there, your object will show least magnetic characteristic or almost 0 magnetic characteristic. Hope you are clear with these concepts. समझा है सबको? So let's go ahead with the new topic.
Okay, one more thing, the last for your JEE point of view. अगर समझो आपको कैसे कभी ऐसा दिया कि कोई एक ऐसा एलिमेंट है जिसके आउटर मोस्ट शेल में ऑड नंबर आता है, आउटर मोस्ट शेल में अगर ऑड नंबर आ रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद, तो सिंपली इट इज गोइंग टू शो एंड व्हाट वी कैन से, इट इज गोइंग टू शो मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक. फॉर एग्जांपल 3d5 आया, 3d5 आया, तो अगर आपका जो ओवरऑल डी शेल का कैपेसिटी है वो 5 का है, सो 1 2 3 4 5, पांचों के पांचों अनपेयर्ड पड़े हुए हैं, मींस इट इज गोइंग टू शो द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ मैग्नेटिज्म. होप यू आर क्लियर. सो अगर ऑड नंबर आपके लास्ट बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अगर ऑड आ रहा है, लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स अगर ऑड नंबर दिखा रहा है, इट सिंपली मींस दैट इट इज गोइंग टू शो मैग्नेटिज्म. दिस इज जस्ट एन ट्रिक टू कि आप थोड़ा अप्रोच कर सकते हो अपने आंसर की तरफ. ऑफ कोर्स कॉन्फ़िगरेशन निकाल के कंफर्म जरूर करना, दैट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट. बट अगर ऑड नंबर आ रहा है तो समवेयर आपके इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड रहने वाले हैं, क्योंकि फर्स्ट शेल का 2 इज द बैलेंस कैपेसिटी, सेकंड शेल का इट इज 6, थर्ड शेल का इट इज, if I talk about this SPDF, I'm talking about the SPDF. If I'm talking about D, so again it consists of 10. F is 14, so it is always an even number. अगर even number नहीं है तो there is a possibility that that particular substance will show a magnetic characteristic. Okay, so let's go ahead. Let's try to learn something new words for magnetism, that is magnetization and magnetic intensity. कहीं कुछ सुना है इसके बारे में कुछ? Magnetization Electric field and intensity सुना है. magnetic intensity. सोलेनॉइड में शायद मैग्नेटिक इंटेंसिटी सुना होगा आपने. यहाँ पे हम सोलेनॉइड का यूज लेने वाले हैं. आपने सोलेनॉइड में मैग्नेटिक इंटेंसिटी पढ़ा होगा कि सोलेनॉइड में योर magnetic intensity is given by N into I. That is, it is amount of current produced per meter, per turn, Yes. per meter, of course. Yes. Okay. So we are going to discuss about the new topic, that is magnetization and magnetic intensity. Now let us first discuss about magnetization. Solid को भी आप मैग्नेटाइज कर सकते हो. You can magnetize. Yeah, magnetic property को introduce करना. So let's go ahead with the magnetization. पहले magnetization समझते हैं, फिर magnetic intensity पे आती हूँ. Magnetization. Okay. Now what is magnetization? अब आपको already पता है कि अगर there is a paired electrons, अगर paired electrons है, तो almost जो net magnetic dipole moment होगा, it will be equivalent to 0. Correct? So net magnetic dipole moment is equals to 0, approximately equals to 0, of course. And अगर unpaired है, if there is an unpaired electron inside an atom or inside an atom, so your net magnetic dipole moment is not equals to 0, of course. जो net magnetic dipole moment होगा वो not equals to 0 होगा. So what is magnetization? How can you define magnetization? Magnetization is represented by capital M, keep it in mind. It is net magnetic dipole moment in a unit volume. एक per unit volume में कितना net magnetic dipole moment है, that gives you magnetization. कितना net magnetic dipole moment है एक unit volume में, that gives you magnetization. For example, let us just try to understand it in the numbers. कि ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो अगर मैं यहाँ पर ध्यान से देखूं तो सिर्फ नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट सिर्फ इसकी वजह से मिलेगा, क्योंकि इन दोनों का तो कैंसिल होने वाला है. सो इन यूनिट वॉल्यूम अगर 5 इलेक्ट्रॉन्स भी है, पर इन दोनों का नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट तो कैंसिल हो चुका है, सिर्फ बचेगा किसकी वजह से? इसकी वजह से. सो दिस इज m net per unit volume. So magnetization is net magnetic dipole moment per unit volume. Hope you are clear what is magnetization. Clear? And of course this net magnetic dipole moment पे तो बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि आपका मटेरियल कितना मैग्नेटाइज होगा, आप कितना इंड्यूस कर सकते हो.
मैम वो वॉल्यूम किधर से आया? पर यूनिट वॉल्यूम, आप एक सब्सटेंस के अंदर देख रहे हो ना, आप एक यूनिट वॉल्यूम में देख रहे हो ना, यू आर सीइंग इनसाइड द सब्सटेंस। आप एटम सिंगल सिंगल एटम लेके बात तो नहीं कर सकते। आपने एक पर्टिकुलर, समझो आपने एक सॉलिड उठाया, दैट इज मेड अप ऑफ कार्बन, तो आप क्या करोगे, उसके एक यूनिट वॉल्यूम में कितना नेट मैग्नेटिक मूवमेंट है वो देखोगे, वही बताएगा कि आपका वो पर्टिकुलर सब्सटेंस कितना मैग्नेटाइज हो सकता है। इसीलिए इट इज कॉल्ड एज मैग्नेटाइजेशन, दिस पर्टिकुलर यूनिट इज कॉल्ड एज मैग्नेटाइजेशन, दैट इज एम नेट पर यूनिट वॉल्यूम। एरिया क्यों नहीं, वॉल्यूम इसलिए क्योंकि सी सिंपली इफ यू टॉक इन द टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, आपका एक सॉलिड सब्सटेंस है तो आप क्या करते हो, यूनिट वॉल्यूम, क्योंकि लेंथ और एरिया दोनों कवर करोगे ना। अगर आप एक बहुत पतला सब्सटेंस भी लेते हो, so that also will have some thickness here, it will have some thickness, so simply you go for an area, you go for a volume instead of going for an area, that's all, और कोई नहीं है। अगर आप 2D सब्सटेंस ले रहे हो तो of course you will talk about the area, but since I am talking about a thick substance जिसका एक height भी होगा, so that is more better to define, nothing else, that is more better जब to define। सिलेंडर ये सब आ जाएगा तो तब लेना ही पड़ेगा ना एरिया। हाँ, सिलेंडर क्यों, सिलेंडर आएगा तो यू नीड टू टेक अ वॉल्यूम, सिलेंडर आएगा तो कहाँ एरिया लेने वाले हो आप अगर इतने दूर में देख रहे हो, अगर आपने बहुत पतला भी करने की कोशिश की तो भी एक थिकनेस तो उसमें आएगी ना। हाँ। एंड व्हाट इज वॉल्यूम, वॉल्यूम इज एरिया इनटू हाइट, इट इज सिंपली एरिया इनटू हाइट, तो यू आर गोइंग टू कंट्रीब्यूट दिस कि आप कितने थिकनेस में देख रहे हो वो भी मैटर करता है। आप ज्यादा थिकनेस में देख रहे हो, एरिया, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो अभी भी सेम है, बट अगर ज्यादा थिकनेस में आप देख रहे हो तो आपको बताना पड़ेगा ना कि मैं इतने दूर में देख रहा हूँ। So that is the reason it is defined as m net per unit volume. परमानेंट मैग्नेटाइजेशन और ये टेम्पररी I'll come to that मैग्नेटाइजेशन। topic home. There are different topics on that. There are something called as diamagnetism, ferromagnetism and paramagnetism. I will discuss that topic over there. वो है आगे, वो topics हम discuss करेंगे आगे जाके। Okay. So मैग्नेटाइजेशन इज सिंपली m net per unit volume. प्लीज ये सारे डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक मार्क्स के लिए। आपका 10 क्वेश्चन ऐसा आता है जो एक एक मार्क्स के लिए ही होता है, सो वहां पे आप ऐसे छोटे छोटे डेफिनेशन से मिस कर जाते हो, आपके मार्क्स यहाँ जाते हैं। बड़े बड़े आंसर्स तो आप लिख के आ जाते हो, कुछ भी लिख देते हो वो अलग बात है, पर छोटे छोटे आंसर्स में आप कुछ नहीं लिख पाते क्योंकि आप वहां पे थियरी नहीं गा सकते, तो वहां पे फिर आप छोड़ के आ जाते हो। तो प्लीज ये सारे टॉपिक्स ध्यान से समझो, दिस टॉपिक्स आर इम्पोर्टेंट एज योर एंट्रेंस ऑल्सो, क्योंकि आपका मैग्नेटिक सब्सटेंस से एंट्रेंस में बहुत से क्वेश्चंस आते हैं। मैंने काफी क्वेश्चंस देखे हैं, आई थिंक दो क्वेश्चंस तो मैंने देखे ही हैं, एंड 2 क्वेश्चन का बहुत मीनिंग है अगर देखा जाए तो। सो m इज इक्वल्स टू m net पर यूनिट वॉल्यूम। नेक्स्ट, अगर आप इसका यूनिट निकालो, इफ यू विल ट्राई टू कैलकुलेट द यूनिट, you will find that the unit of this magnetization is ampere per meter. It is ampere per meter because magnetic dipole moment क्या होता है, current into area, correct? It is current into area, I into A. Volume में से area got cancelled, you simply get ampere per meter. So the unit for magnetization is ampere per meter. Clear with the terms? Of course, again, this is a vector quantity. This magnetization is also a vector quantity because it depends upon m net per unit volume. This volume is a scalar quantity. So ये vector है, तो vector, this vector upon scalar gives you a vector quantity. It's a vector quantity. It depends upon the direction, आप कौन से direction में बात कर रहे हो. Clear? So हमने magnetization के बारे में discuss किया. मैं वापस रिवाइज कर रही हूँ, ध्यान से सुनो. What is magnetization? Magnetization is net magnetic dipole moment per unit volume. Magnetization is a vector quantity. Of course, ये result आएगा जब आपके पास unpaired electron होगा, net magnetic dipole moment होगा. The unit for this particular, what we can say here, the unit for magnetization is ampere per meter. I have proved it how it is, because net magnetic dipole moment is I into A divided by volume. Volume ka area got cancelled. You get I per meter, that is ampere per meter. It's a vector quantity. That is the last point for magnetization. Let's discuss about magnetic intensity now. What is magnetic intensity? Magnetic intensity. See, ये बात तो क्लियर है कि mnet होना बहुत जरूरी है for making your object to be magnetized. आपके ऑब्जेक्ट को मैग्नेटाइज करने के लिए mnet का एक्सिस्टेंस होना बहुत जरूरी है. अगर वो नहीं है तो आपको बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है. mnet आपको क्रिएट करना पड़ता है.
तब जाके भी आप कुछ कुछ सब्सटेंस को मैग्नेटाइज कर सकते हो, बट अगर ये नॉर्मली प्रेजेंट है तो वो सब्सटेंस बहुत इजीली मैग्नेटाइज हो जाते हैं। ओके, सो ऑफ कोर्स दोस मैग्नेटाइजेशन, उसका जो मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक दिखाने का मेन जो कैरेक्टरिस्टिक है, उसके लिए एमनेट होना बहुत जरूरी है। ओके, सो लेट्स डिस्कस अबाउट मैग्नेटिक इंटेंसिटी। व्हाट मैम डज दिस मीन? नेचुरली एमनेट एवरेजली है क्या सब में? हाँ, एमनेट आपके मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स में मिलता है, बट कुछ ऐसे हैं, एक्चुअली बोला जाए तो एमनेट ऑलमोस्ट बहुत लोगों में, बहुत सारे एलिमेंट्स में, बहुत सारे एटम्स में कम होता है, बहुत ज्यादा कम होता है। आपको सब सब्सटेंस में बहुत ज्यादा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देखने के लिए नहीं मिलती। आप वुड पे बैठो, प्लास्टिक को टच करो, आपके स्टील को टच करो, वो सारे हर वक्त आपको मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं दिखाते, क्योंकि दे हैव अ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। मैम सो वुड भी एमनेट की वैल्यू बहुत कम होती है, नॉर्मली सब्सटेंसेस में बहुत कम होती है। कुछ आगे आगे जाके आप सब्सटेंस पढ़ोगे जिसमें आपको आप फाइंड आउट करोगे कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है। ठीक है, सो डायमैग्नेट, सॉरी ये टर्म यूज नहीं करना चाहिए था मुझे फिलहाल। जो एमनेट की क्वांटिटी होती है, जो एमनेट की वैल्यू होती है, ऑलमोस्ट बहुत कम होती है बहुत सारे सब्सटेंसेस में। इट इज वेरी लेस। ओके, सो लेट्स गो अहेड विथ मैग्नेटिक इंटेंसिटी। मैग्नेटिक इंटेंसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय H। ये H से रिप्रेजेंट किया जाता है। नाउ ये मैग्नेटिक इंटेंसिटी आया कैसे? यू हैव स्टडीड अबाउट सोलेनॉइड, करेक्ट? सोलेनॉइड के बारे में पढ़ा है, बहुत सारे ऐसे कर्ल किए हुए लूप बनाए हुए वायर्स होते हैं। जब आप उसके अंदर से करंट पास करते हो, वो करंट इन लूप्स से पास आउट होता है। इट क्रिएट्स अ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड। एक्चुअली इनसाइड, आउटसाइड का कुछ खास इफेक्ट नहीं देखने के लिए मिलता। सो इट क्रिएट्स अ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड। इसके ऊपर आपको, अगर आप हायर स्टैंडर्ड में जाते हो तो आपको एक्सपेरिमेंट भी करवाया जाता है। सोलेनॉइड के अंदर चीजों को फेंका जाता है, अगर वो चीजें बाहर मैग्नेटाइज होके निकल रही है मतलब उसका एमनेट अच्छा है। अगर वो चीजें बाहर मैग्नेटाइज होके नहीं निकल रही है तो उसका एमनेट बहुत कम है या फिर ऑलमोस्ट जीरो है, ऐसा फाइंड आउट किया जाता है। सो लेट अस कंसीडर सोलेनॉइड। ये तो भी आपको बहुत मैग्नेटिफाइड फॉर्म दिखा रही हूँ। टर्न्स के बीच में बिल्कुल स्पेस नहीं होता सोलेनॉइड में, एकदम चिपके हुए टर्न्स होते हैं। ऑलमोस्ट 150, 160, 170 टर्न्स आर देयर। उससे भी ज्यादा टर्न्स के सोलेनॉइड होते हैं। जो हमने किया था, इट वाज, आई थिंक इट वाज हैविंग 250 टर्न्स, और हमको बोला गया था कि काउंट करो बैठ के, क्योंकि ये टर्न्स हमको इसके मैग्नेटिक फील्ड के बारे में डिस्कस समझाते हैं। यू नो दैट द magnetic field due to the solenoid is given by B naught is equals to mu naught into N into I। ये आपने प्रूफ किया है पीछे। mu naught is the permeability in free space, N is the number of turns of solenoid, this is number of turns of solenoid, and I is the current which is flowing through it। okay, so here जितना ज्यादा टर्न्स होगा मैग्नेटिक फील्ड उतना स्ट्रॉन्ग बनेगा उसके अंदर। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने एक मटेरियल इसके अंदर डाला मैग्नेटाइज होने के लिए। आई एम पुटिंग वन रॉड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इनसाइड द सोलेनॉइड। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि यू आर गोइंग टू डू सच एक्सपेरिमेंट्स, कि जिसमें आपको एक ऐसा रॉड जैसा स्ट्रक्चर दे दिया जाएगा और बोलेगा सोलेनॉइड के जो मिडल में से ये जो पर्टिकुलर ऐसा आपको सिलेंडर जैसा मटेरियल, ये रॉड, ये सर्कल बना बना के इतना पास में ये लूप्स होते हैं कि आपको एक ऐसा सिलेंडर जैसी चीज मिलेगी जो अंदर से खाली होगी, ऊपर से ऐसे टर्न्स बहुत सारे टर्न्स होंगे। आपको बोला जाएगा वो जो रॉड है जो आप दिया गया है उसको इसके अंदर से इंसर्ट करके दूसरे साइड से निकालो। जैसे आप बाहर निकालोगे, अगर वो मैग्नेटाइज हो गया मींस उसका मैग्नेटिक एमनेट बहुत अच्छा है। अगर वो मैग्नेटाइज नहीं हुआ सोलेनॉइड में तो मतलब उसका एमनेट बहुत कम है, वो जल्दी मैग्नेटाइज नहीं हो सकता। वो आपका सब्सटेंस को बताएगा कि वो कौन से टाइप का सब्सटेंस है, जल्दी मैग्नेटाइज होने वाला सब्सटेंस है, कम मैग्नेटाइज होने वाला सब्सटेंस है, या बिल्कुल मैग्नेटाइज होने वाला सब्सटेंस नहीं है, सब्सटेंस है जिसमें बिल्कुल मैग्नेटाइजेशन ना हो। हेलो मैम, मालूम कैसे पड़ता है कि वो हो चुका है मैग्नेटाइज? कंपास रखे, अगर आप उस सब्सटेंस के पास, इस रॉड के पास अगर आप कंपास रख दो, अगर वो फ्लक्चुएट होना शुरू हो गया, उसका फ्लक्चुएशन बहुत स्ट्रांग हो गया, तो वो क्या करेगा, इट इज मैग्नेटाइज्ड। अगर वो फ्लक्चुएट नहीं हो रहा है तो इट इज नॉट मैग्नेटाइज्ड, दैट्स ऑल। वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पड़ा रहेगा। समझ में आया? हाँ मिस। या सो जो सब्सटेंस जो रॉड मैंने अंदर डाला, लेट अस से कि उसका जो मैग्नेटिक फील्ड जो वो उसके अंदर है,
बिकॉज इंटरनल जो मैग्नेटिक फील्ड है, एम नेट जो उसका खुद का है, लेट अस से इट इज BM. ठीक है, सो टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी, दैट टोटल मैग्नेटिक फील्ड विल बी एडिशन ऑफ दिस टू, जो इसकी वजह से इसके ऊपर आया और जो इसके पास ऑलरेडी था. सो इट इज गिवन बाय B0 प्लस BM. ठीक है, नाउ ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगी ऑन दिस पर्टिकुलर रॉड, दैट इज बिकॉज ऑफ द सोलेनॉइड प्लस उसकी जो इंटरनल है वो. नाउ ये जो BM है, इसको एक्सपेरिमेंटली देखा गया है, दिस मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय μ0 into m, where m is the magnetization. आपका जो BM है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है? परमिएबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय मैग्नेटाइजेशन. परमिएबिलिटी का मतलब क्या है वो समझने की कोशिश करना. परमिटिविटी या परमिएबिलिटी, जैसे आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में परमिटिविटी काम करता है, वैसे ही मैग्नेटिज्म में परमिएबिलिटी काम करता है. अगर परमिएबिलिटी को बहुत अच्छे से समझना चाहते हो तो सिर्फ इतना समझ जाओ परमिएबिलिटी के बारे में कि कोई भी सब्सटेंस कितना अलाउ करने वाला है अपने आप को मैग्नेटाइज होने के लिए. परमिएबिलिटी सिंपली आपको ये क्वांटिटी बताता है कि कोई भी सब्सटेंस, सिंस इट इज μ0, इट इज परमिएबिलिटी इन फ्री स्पेस. ओके, तो कोई भी सब्सटेंस फ्री स्पेस में अपने आप को कितना मैग्नेटाइज करने दे रहा है, दैट डिफाइंस द परमिएबिलिटी. या परमिटिविटी भी मतलब वही है कि कोई सब्सटेंस कितना परमिशन दे रहा है अपने आप के अपने अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करने के लिए. तो परमिशन, परमिटिविटी, इस तरीके से आप दिमाग में रख सकते हो. परमिशन, परमिटिविटी, परमिएबिलिटी, it's a permission to produce magnetic field or electric field inside the body. Okay, so BM is given by experimentally, it is found μ0 into m, where m is magnetization and μ0 is the allowance of substance to form magnetic field inside its body. So if I substitute this above, what I will get? B is equals to B0 is μ0 Ni, ये आपका सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड है, प्लस BM is μ0 m. Okay, now ये जो N into I है ना, this is actually your magnetic intensity. N into I, which is given by H, is your magnetic intensity. Magnetic intensity. और आप देख सकते हो कि ये जो मैग्नेटिक, एक्चुअली इसको डिफाइन कैसे किया जाता है, आपने सोलेनॉइड में पढ़ा होगा. मैग्नेटिक इंटेंसिटी डिफाइन कैसे किया जाता है? इट इज अमाउंट ऑफ करंट इन अ नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट डिस्टेंस. इट इज अमाउंट ऑफ करंट इन अ नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट डिस्टेंस. ओके, और पर यूनिट मीटर. तो ये H is equals to N into I. क्यों श्रीकांत? Why you want to leave? So N into I. Okay, your wish. आपका लॉस है. So N into I is H. So B is equals to μ0 into H plus μ0 into M. μ0 कॉमन करोगे, so B is equals to μ0 कॉमन करोगे तो it is H plus M. Okay, so this H is the magnetic intensity which is given by N into I. It is simply current loops, that is current multiplied by number of turns in a unit area. Okay, Shrikant. In a unit, in a unit meter. Sorry, unit length, of course. In a unit length. Okay. So this is all about the magnetic intensity. Of course, this magnetic intensity does not depends on material. आप देख सकते हो कि it does not depends on material. ये सिर्फ number of turns, current introduced in a unit length पे depend करता है. तो यही magnetic intensity और इस B में यही बड़ा difference है कि ये दोनों, इन दोनों में difference इतना ही है कि यहाँ पर ये जो N into I है, इसको substance से फर्क नहीं पड़ता. But this B, it depends upon the substance. It depends upon μ0. कि कोई भी substance कितना allowance करने वाला है अपने अंदर field generate करने के लिए. Okay. So, if you try to calculate H, कैसे करोगे? B by μ0 minus M is equals to H.
This is again the new formula for your magnetic intensity. अगर आपको B दिया है टोटल मैग्नेटिक फील्ड, आपको परमिएबिलिटी दिया है, आपको मैग्नेटाइजेशन उस मटेरियल का पता है, तो आप H कैलकुलेट कर सकते हो. So H is also given by the formula H is equals to B by mu naught minus M, where B is the total magnetic field, M is the magnetization of a material, and mu naught is the permeability in free space. H is the magnetic intensity. Again, H have a same dimension as that of B. That is, H have a same dimension as that of, sorry, M, that is magnetization, not B. Magnetization के बराबर ही H का भी. See, you can only add those things जिसका dimension same हो. ये बात आपको पता है. आप मीटर के साथ सेकेंड को ऐड नहीं कर सकते. So H and M are going to have a same dimension. That is, again, it is going to be ampere per meter. It is again an ampere per meter. So आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है, वो दोनों चीजों पे डिपेंड करती है. कितना वो जो पर्टिकुलर करंट लूप है वो कितनी मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्रिएट कर रहा है, प्लस आपका ऑब्जेक्ट कितना मैग्नेटाइज हो सकता है. इट डिपेंड्स ऑन टू बोथ द थिंग्स. दोनों चीजों पे डिपेंड करती है. आप कितना बाहर से क्रिएट कर रहे हो, प्लस आपका ऑब्जेक्ट कितना अपने अंदर क्रिएट, आपके ऑब्जेक्ट में कितनी कैपेबिलिटी है क्रिएट करने की, या एमनेट कितना है ऑब्जेक्ट के पास. दोनों पे डिपेंड करता है आपका टोटल मैग्नेटिक फील्ड. आर यू क्लियर टिल दिस मच? इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क. मिस अदरवाइज एंड हो है. बोलो. रिवाइज कर सकते हो आप? श्योर. ठीक ठीक है. यहाँ पे देखो हमने कहाँ से स्टार्ट किया. वी स्टार्टेड विथ मैग्नेटाइजेशन. ओके, मैग्नेटाइजेशन में हमने क्या देखा कि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, देयर विल बी नो नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, सो इट विल बी जीरो. पेयरिंग हो जाएगी तो एक जो है वो दूसरे को कैंसिल करेगा और आपको जो नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट मिलेगा वो ऑलमोस्ट इक्वल्स टू जीरो मिलेगा. अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है तो आपको नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल्स टू जीरो मिलेगा. मींस वो पर्टिकुलर सब्सटेंस जो है वो मैग्नेटाइज हो सकता है, इजीली मैग्नेटाइज हो सकता है क्योंकि उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है. नेक्स्ट, अगर आप मैग्नेटाइजेशन डिफाइन करते हो, इट इज एमनेट पर यूनिट वॉल्यूम. यूनिट इज एम्पियर पर मीटर. एमनेट इज आई इनटू ए वॉल्यूम. वॉल्यूम का एरिया गॉट कैंसल्ड, यू गॉट एम्पियर पर मीटर. दिस वाज ऑल अबाउट मैग्नेटाइजेशन. ऑफ कोर्स मैग्नेटाइजेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी. इट डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन कि आप कौन से डायरेक्शन में एमनेट देख रहे हो, बहुत मैटर करता है. नेक्स्ट इज वी डिस्कस्ड अबाउट द मैग्नेटिक इंटेंसिटी. मैग्नेटिक इंटेंसिटी को समझने के लिए हम लोग ने सोलेनॉइड लिया. उस सोलेनॉइड में देयर आर एन नंबर ऑफ टर्न्स. ओके, वी नो दैट उस पर्टिकुलर सोलेनॉइड में देयर इज एन एक्सपेरिमेंट जिसमें आपने एक रॉड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इस पर्टिकुलर सोलेनॉइड में इंसर्ट किया और बाहर की तरफ निकाला. अब ये सब्सटेंस कितना मैग्नेटाइज हो रहा है, इसके पास टोटल कितना मैग्नेटिक फील्ड है, ये बताएगा कि whether this substance is a good, it is having a good magnetization or not. ये कौन सा टाइप का सब्सटेंस है, इजीली मैग्नेटाइज होने वाला सब्सटेंस है या इजीली मैग्नेटाइज नहीं होने वाला सब्सटेंस है या बिल्कुल ही मैग्नेटाइज नहीं होने वाला सब्सटेंस है. सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस पर्टिकुलर सोलेनॉइड इज जनरेटेड एज म्यू नॉट एन आई. ये आपने पीछे प्रूफ किया है. वेयर म्यू नॉट इज परमियाबिलिटी इन फ्री स्पेस. परमिया मींस परमिशन के हिसाब से आप सोच सकते हो कि इट्स एन परमिशन टू प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड इन फ्री स्पेस. ओके, so n is the number of turns and I is the current flowing through that particular solenoid. Yes. हेलो मिस. बोलो. मिस, n तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होगा ना? हाँ, it is number of turns per unit length. Actually this total we are calculating total B naught na? No, listen, we are calculating total B naught, so n is total number of turns, it's not number of turns per unit length. ये number of turns per unit length नहीं है, it is total number of turns. आपका पूरा सोलेनॉइड के पास, क्योंकि आप टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो. ओके, एंड इतना क्लोज होता है कि पर यूनिट लेंथ में नहीं देखा जाता. आई हैव डन द एक्सपेरिमेंट, वी हैव कैलकुलेटेड टोटल एन. जितना एन है वो पूरा लिया जाता है. नॉर्मली आपको एक्सपेरिमेंट सम्स वगैरह देते समय वो आपकी चीजों को इजी कर देंगे या आपको वो लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड बता देंगे कि दिस मच इज द लेंथ ऑफ सोलेनॉइड. तो जब आप इंटेंसिटी निकालोगे तो आपको पर यूनिट लेंथ का निकालना होगा. ठीक है, so let's go ahead. V naught is equals to mu naught Ni. So Vm is the amount of magnetic field generated inside the substance due to Mnet. So B bar is equals total magnetic field on that particular rod will be V naught plus Vm. Vm is actually your mu naught times of M, where mu naught is again permeability in a free space and M is the magnetization.
So if I substitute these two values, I got mu naught Ni plus mu naught M. Now, here, if I want to here this N into I is actually giving you H, which is magnetic intensity. So here you have to take per unit length. यहाँ पे आपको per unit length के लिए लेना पड़ेगा. Clear? क्योंकि magnetic intensity का मतलब होता है amount of current produced in a particular time in a unit length. तो आप जब मैग्नेटिक इंटेंसिटी कैलकुलेट करोगे तो पर यूनिट लेंथ के लिए कैलकुलेट करोगे, बट जब V नॉट कैलकुलेट किया जाता है तो ये टोटल के लिए कैलकुलेट किया जाता है. Clear with the part? So here N into I per unit length will be your magnetic intensity, which is represented by H. Now what you are going to do? V is equals to mu naught H plus mu naught M. आपने N into I को H से रिप्रेजेंट किया, रिप्लेस किया, तो mu naught कॉमन हो गया H plus M. Now what? If it is H plus M, अगर आप ट्राई करो तो H के टर्म H के लिए in these two terms, of course PDF तो सेंड करती हूँ ना मेघराज. आप लोग को ऑलमोस्ट 2 महीने का लेक्चर खत्म हो चुका है और 2 महीने में मैंने हर दिन PDF सेंड किया है. फिलहाल वो टॉपिक ज्यादा जरूरी है या ये समझना ज्यादा जरूरी है? V1 mu naught minus M is equals to H. H with the help of total magnetic दी है, आपको मैग्नेटाइजेशन दिया है, आपको म्यू नॉट दिया है, तो आप H कैलकुलेट कर सकते हो कि उस पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए या उस पर्टिकुलर सोलेनॉइड के लिए व्हाट विल बी द मैग्नेटिक इंटेंसिटी. अगेन दो चीज तभी ऐड हो सकती है जब उनकी यूनिट सेम हो. तो यूनिट ऑफ H इज अगेन एम्पियर पर मीटर. So let's go ahead. Let's try to understand more things for magnetic intensity. कुछ और भी डिराइव करना है इसकी हेल्प से. Let us say कि अगर H बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, H is not very strong, अगर H की वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं है, तो what we find that आपका जो मैग्नेटाइजेशन है सब्सटेंस का, it is equals to Xi into H. This Xi is called as susceptibility. Here it is magnetic susceptibility, of course. इसके बारे में स्ट्रॉन्ग हो गया स्पेलिंग. इट इज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी. ओके, इसके बारे में ऑलरेडी आपने ससेप्टिबिलिटी के बारे में आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से पढ़ा है कि व्हाट इज ससेप्टिबिलिटी. ससेप्टिबिलिटी का मतलब होता है बिहेवियर ऑफ अ सब्सटेंस इनसाइड मैग्नेटिक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. ससेप्टिबिलिटी का मतलब होता है बिहेवियर ऑफ मटेरियल inside external magnetic field. आपने किसी मटेरियल को अंदर डाला तो उसका बिहेवियर कैसा होगा? वो अट्रैक्टिंग होगा, वो अट्रैक्ट करेगा, या वो रिपल करेगा, या उसके पास रुका रहेगा. दैट ऑल डिफाइंस दिस ससेप्टिबिलिटी. ये ससेप्टिबिलिटी का मतलब होता है कि अगर कोई चीज अट्रैक्ट हो रही है या कोई चीज रिपल हो रही है, ये जो बिहेवियर है ये आपका ससेप्टिबिलिटी समझाता है. तो अगर H बहुत बड़ा नहीं है तो आपका मैग्नेटाइजेशन इज Xi टाइम्स ऑफ H. इसको Xi बोलते हैं. Xi टाइम्स ऑफ H, where Xi is the susceptibility. And if I introduce in the above formula, what I get? हमने देखा था B is equals to mu naught H plus M. और M हमने क्या फाइंड आउट किया? It is Xi into H. So if I introduce it here, B is equals to mu naught H plus Xi into H. अगर आप H कॉमन करो, you'll get B is equals to mu naught H into 1 plus Xi. And this 1 plus susceptibility is called as relative permeability. So B is equals to mu naught, this 1 plus Xi is mu R into H. This is relative permeability. आपको याद है व्हाट इज रिलेटिव परमिटिविटी और रिलेटिव परमिएबिलिटी? रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब होता है किसी सब्सटेंस की परमिटिविटी विद रिस्पेक्ट टू फ्री स्पेस. तो वैसे ही रिलेटिव परमिएबिलिटी का भी मतलब होता है किसी सब्सटेंस की परमिएबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू परमिएबिलिटी इन फ्री स्पेस. ओके, सो B is equals to mu naught into mu R is equals to H. Now here mu R is 1 plus I. That gives you relative permeability.
I'll take an example to understand, to explain you this. मैं एक example लूंगी आगे जाके, फिलहाल ये समझो इसका equation कैसे आ रहा है. Now mu naught into h. अब जरा यहाँ एक चीज ध्यान दो. Mu r is substance का permeate with free space. So mu naught into mu r will be mu. समझ में आ रहा है? What is relative permeability is permeability of a substance. वो substance की कितनी permeability है in that particular medium with respect to permeability in free space. Okay, so mu r into mu naught will be mu, that is permeability of that particular substance. So B is equals to mu naught into mu r becomes mu into h. So this is very important relation between your external magnetic field and magnetic intensity. B is equals to mu times of h, where B is the total external magnetic field, mu is the permeability of a substance, not permeability in free space. Permeability in free space होता तो mu naught होता. Clear? So these things, these symbols confuses you. तो ये सारे symbols को बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा हमको. And this h is the magnetic intensity, of course. आपको कभी कभी ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाएगा, आपको जाई की वैल्यू दे देंगे, आपको म्यू नॉट की वैल्यू दे देंगे और बोलेंगे कैलकुलेट द एक्सटर्नल, और आपको एच दे देंगे, बोलेंगे कैलकुलेट द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. वेट ऑन. सो आपके पास म्यू, आपको पता है व्हाट इज म्यू, आप 1 प्लस आई करके म्यू आर निकालोगे, उस म्यू आर में म्यू नॉट को मल्टीप्लाई करोगे तब आपको म्यू मिलेगा. दैट इज द परमेबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस. ओके, नॉट इन फ्री स्पेस, इन एनी मीडियम. So B is equals to mu times of h. This is what explains you. Clear? So this was all about the relation between your magnetization and susceptibility. If you have any doubt, please ask. हाँ, ओके, मुझे आपको इसके बारे में, ठीक है, पहले आप डाउट क्लियर करो, उसके बाद मैं आपको एक एग्जांपल लेती हूँ इस 1 प्लस जाई को समझाने के लिए कि हाउ इट इज गिविंग यू रिलेटिव परमेबिलिटी. अगर H बहुत स्ट्रांग नहीं है तो आपकी मैग्नेटिक इंटेंसिटी और मैग्नेटाइजेशन के बीच में रिलेशन आएगा फॉर दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस. एंड यू विल फाइंड दैट M is equals to psi into H. ये जो psi है, दिस इज योर ससेप्टिबिलिटी. ससेप्टिबिलिटी का मतलब होता है बिहेवियर ऑफ अ सब्सटेंस इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड. वो अट्रैक्ट होने वाला है, वो रिपल होने वाला है, वो ये साई की वैल्यू बताती है कि अगर वो अट्रैक्ट होगा या वो रिपेल होगा. ये आपका साई का वैल्यू बताता है, ससेप्टिबिलिटी बताता है कि अगर आपने किसी सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डाला तो वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ भागेगा या मैग्नेटिक फील्ड से दूर भागेगा. ये ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू बताती है. समझा? परमिएबिलिटी और ससेप्टिबिलिटी दोनों अलग अलग चीजें हैं, ये बात समझना. दोनों के बीच में कनेक्शन है, दे हैव अ कनेक्शन बिटवीन देम, बट सिंस बोथ ऑफ देम आर डिफरेंट थिंग्स. परमिएबिलिटी का मतलब है वो अपने अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड बना सकता है, और ससेप्टिबिलिटी आपको बिहेवियर बताता है कि वो बिहेव कैसा करेगा, वो पास में आएगा कि दूर भागेगा. समझा? दिस इज द डिफरेंस बिटवीन परमिएबिलिटी एंड ससेप्टिबिलिटी. सो बिहेवियर ऑफ अ मटेरियल इनसाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के बारे में समझाता है आपको ससेप्टिबिलिटी. It is given by psi, of course. B is equals to mu naught h into psi, h plus m. हमने ये देखा था, हमने देखा m is equals to psi into h. So h common किया, 1 plus I. 1 plus I will give you a relative permeability. Relative permeability means permeability of a substance with respect to free space. Free space में कितनी permeability है, उससे हम कंपेयर करते हैं सब्सटेंस की परमेबिलिटी को. मैंने आपको बताया था कि ये ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि फ्री स्पेस की परमिएबिलिटी को हम रेफरेंस पॉइंट ले रहे हैं, तो ऑफ कोर्स हमको हमेशा उस रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ही हमेशा बात करनी है. कभी भी आप जब सब्सटेंस की परमिएबिलिटी बताते हो तो आप विद रिस्पेक्ट बताते हो. जब आप एग्जाम्स देकर आते हो, व्हेन यू गिव एग्जाम, आपको जब मार्क्स आते हैं, लेट अस से कि आपका एग्जाम बहुत इजी है और आपका जो मार्क्स आ रहा है वो लेट अस से 50% आ रहा है, तो आप एक ओरिजिन बताते हो कि अच्छा पेपर इजी था, 50% आया, इज नॉट गुड. पेपर हार्ड था, 50% आया, इज वेरी गुड. So you always define an origin. So relative permeability gives you the permeability with respect to free space. Okay. So this 1 plus I is a relative permeability.
How it is relative permeability, I'll explain you further. So B is equals to mu naught into mu r is equals to H. This mu naught into mu r, you know that what is mu r? It is permeability of substance with respect to permeability of a free space. So when you define this, when you divide this two, कि अगर वो substance नहीं भी होता तो इतना तो होना ही है permeability. So इसका इसके respect में कितना, what is the relative permeability? ठीक है? So mu r is equals to mu by mu naught. Mu r into mu naught will give you mu. So mu naught into mu r will give you mu. So B is equals to mu into H, where B is the total magnetic field, mu is the permeability of a substance, and this H is the magnetic intensity. Hope you're clear. Now, ये जो सुपर कंडक्टर्स बनाए जा रहे हैं, मैं 1+i के बारे में जरा कुछ समझाने जा रही हूँ. समझा तो ठीक, नहीं समझा तो याद रखना कि 1+i is your relative permeability. अब ये जो सुपर कंडक्टर्स होते हैं, आपको पता है ना सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं? जिनका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, जीरो होता है ऑलमोस्ट. सुपर कंडक्टर्स बोलने का मतलब ये रेजिस्टेंस इज वेरी जीरो. सो इट्स अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू जीरो. वेरी जीरो जैसा कुछ नहीं होता, अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू जीरो. इसका मतलब ये है कि अगर आप उसके अंदर से करंट पास करोगे या आप वोल्टेज अप्लाई करोगे तो आपका लॉस ऑलमोस्ट इक्वल्स टू जीरो होगा बिकॉज ऑफ द रेजिस्टेंस. ऐसी कोई चीज आज तक सच बोल दूं तो नॉर्मल टेम्परेचर पे तो नहीं बनी है, बट बहुत लोअर टेम्परेचर पे जाकर इन चीजों को बनाने की कोशिश की गई है. बट नॉर्मल टेम्परेचर पे अभी भी सुपर कंडक्टर को अप्रोच कर पाना मुश्किल रहा है. ओके, सो सुपर कंडक्टर्स में होता क्या है, ये जो सब्सटेंसेस होते हैं ये जल्दी मैग्नेटाइज नहीं होते, दे डोंट गेट मैग्नेटाइज. इनकी जो रिलेटिव परमेबिलिटी होती है, वो जीरो होती है. इट इज जीरो. क्यों इट इज जीरो? क्योंकि इनका जाय का वैल्यू इज -1. इसका मतलब ये है कि -1 मतलब ये है कि ये बिल्कुल नेगेटिव में आने का मतलब ये है जाय का कि ये बिल्कुल भी मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट नहीं करते. They don't support magnetic field. They always try to move away from the magnetic field. उनको magnetic field में रहना पसंद नहीं है. Okay. So when you introduce, you know mu r is equals to 1 plus xi. और xi की वैल्यू अगर -1 ले रहे हैं, means mu r will be 0. Means mu r is equals to mu by mu naught. Mu naught तो हमेशा एक फिक्स वैल्यू होने वाली है. तो mu r 0 कब आएगा? जब मेरी mu की वैल्यू 0 आएगी. Means this substance is not allowing to form a magnetic field inside its body. बनाने ही नहीं दे रहा है. समझ में आ रहा है? So relative permeability just explains you कि with respect to mu naught, with respect to free space, कोई भी substance अपने अंदर with respect to free space कितना permeability, कितना permission allow कर रहा है. Free space में तो उतना होना ही है, but उसके respect में वो कितना allow कर रहा है. This is what explains you. So superconductors are those जिसके अंदर permeability 0 होती है. वो बिल्कुल अपने अंदर magnetic field को generate नहीं होने देते. अगर आप उनको external magnetic field में रखोगे तो वो अपने अंदर बिल्कुल magnetic field, मतलब इनका अब ओवरऑल तुम समझ सकते हो कि ये ऐसे सब्सटेंस से बनाया जाएगा जिनका mnet ऑलमोस्ट 0 हो. इसीलिए सुपरकंडक्टर्स को बनाने के लिए हीलियम का यूज किया जाता है, लिक्विड हीलियम्स का. आपका सुपर कंडक्टर बनाने के लिए हीलियम का यूज किया जाता है. हीलियम पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए हैं लिक्विड सुपर कंडक्टर्स बनाने के लिए. आप आगे जाके पढ़ोगे इन सब चीजों के बारे में बहुत कुछ. सो दिस इज व्हाट इज द पार्ट. कुछ डाउट है तो प्लीज आस्क. आपको परमेबिलिटी और ससेप्टिबिलिटी के बीच में डिफरेंस समझा? दैट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन परमेबिलिटी एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन योर व्हाट डू यू मीन बाय ससेप्टिबिलिटी. स्पेशलिटी ऑफ मैग्नेट्स मतलब क्या स्पेशलिटी जानना चाहते हो तुम? एवरीथिंग इज अ स्पेशल. मैग्नेट इज अ स्पेशल थिंग. जब मैग्नेट मिला था फर्स्ट टाइम तो इट वाज अ ग्रेट डिस्कवरी. कुछ ऐसी चीज मिली थी जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि ऐसी कोई चीज होगी जो दूसरी चीज को अट्रैक्ट करेगी. बाद में ये फाइंड आउट किया कि ऑफ कोर्स अट्रैक्शन दोनों साइड पे डिपेंड करता है. वो तो अपनी प्रॉपर्टी दिखाने ही वाली है,
पर आप उसकी तरफ कितनी अपनी प्रॉपर्टी दिखाने वाले हो, दैट विल गिव यू द टोटल मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज बी। वो तो अपनी प्रॉपर्टी को नहीं छोड़ने वाला है, पर तुम उस पर कितना रिस्पॉन्ड कर रहे हो वो तो आपका ये साई बताता है, साई इनटू एच, ये पर्टिकुलर पार्ट बताता है। You're not audible to me. You're not audible to me, please. Okay, let's go ahead. एक sum करते हैं. Have a pencil and have a pen and a book with you. एक sum करते हैं. Have a pen and a book with you. किसी को कोई डाउट नहीं है पीछे? What is magnetic intensity? What is external total magnetic field? What is permeability? What is permeability in free space? What is relative permeability? What is magnetization? What is Bohr magneton? Or what is gyromagnetic ratio? Are you clear with all the concepts till now? सारी चीजें आपको समझी है? What is gyromagnetic ratio? Angular moment, magnetic dipole moment per unit angular momentum. What is Bohr magneton? आपका magnetic dipole moment atoms में Bohr magneton में measure किया जाता है. What is magnetization? mnet per unit volume. What do you mean by magnetic intensity? It is the amount of current produced in a number of turns per unit length. This is magnetic intensity. Magnetic intensity and magnetization both have the same dimensions. Magnetic intensity बाहर की वजह से आती है, magnetization अंदर की वजह से होता है. That is always true. What is permeability? मैंने आपको बोला permittivity और permeability को दिमाग में रखने के लिए सिर्फ permission word याद रखो कि वो कितना permission दे रहा है अपने अंदर फील्ड क्रिएट करने के लिए. हाई परमिएबिलिटी है मतलब हाई परमिशन है, ज्यादा परमिशन है. लो परमिएबिलिटी है मतलब लेस परमिशन है. रिलेटिव परमिएबिलिटी मैंने आपको बताया. व्हाट इज रिलेटिव परमिएबिलिटी? 1 + i. साइज ससेप्टिबिलिटी. ससेप्टिबिलिटी का मतलब है उसका बिहेवियर, वो अट्रैक्ट होने वाला है, वो रिपेल होने वाला है. मैक्सिमम कितना रहता है? यू कैन फाइंड इट ऑन गूगल. मैक्सिमम मिनिमम कितना रहता है? You can find it on Google. अलग-अलग elements के लिए अलग-अलग. That depends upon unpaired electrons. Whoever is speaking, you are not audible to me. Sorry. One plus I is your relative permeability. You can relate your psi with the permeability. Keep it in mind. 1 plus I is the relative permeability. Relative permeability is permeability of a substance with respect to permeability in free space. किसी को कोई डाउट नहीं है यहाँ तक? Should we go ahead? Let's do the last sum and then we will end up here. फिर कल हम पढ़ेंगे कि ससेप्टिबिलिटी के हिसाब से आपके सब्सटेंस को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है. डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक. Okay. Oh, if it is something out of topic, please, you should discuss it outwards, or you can find it on Google as well. अब लेक्चर खत्म होने के बाद कुछ नया टॉपिक अगर आप इंट्रोड्यूस भी कर रहे हो तो प्लीज लास्ट में पूछो, या फिर यू कैन मैसेज मी ऑन जीनियस एकेडमीज नंबर. Okay, let's go ahead. Or let it be, we will start tomorrow. We'll go ahead with the sum tomorrow. So आपका काम क्या है अभी? होमवर्क फॉर यू. होमवर्क है कि आपको मैंने जितनी भी चीजें अभी तक पढ़ाई है. आई थिंक स्क्रीन इज हैंग. Yes. प्रतिमा मैम, आर यू देयर? हेलो मिस. हाँ. मिस एक डाउट था मिस, आपका खत्म हो गया लेक्चर?